It feels like 10th just started and pre-boards literally are right around the corner already and I'm literally freaking out क्योंकि इतना ज़्यादा syllabus है. मतलब realistically speaking इतने ज़्यादा syllabus का पेपर हमने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं दिया है. Like as a CBSE student, I have never given an exam जिसपे इतना ज़्यादा syllabus आए, especially SST में. Like मेरे को कोई पर्सनल हिट हो गया एसएसटी से. सो इन दिस वीडियो इफ आई hit on SST a lot, that is why I hate SST. There is just so much syllabus to complete in SST. Anyways, this video is going to be like a how I study for my pre-boards vlog. And आज मेरी छुट्टी है, so I'll try to make it most productive, like जितना भी मैं कर सकती हूँ. क्योंकि दिवाली थी एंड दिवाली के टाइम वी वर नॉट एट होम फॉर लाइक हाफ ऑफ द दिवाली ब्रेक. आई थॉट आई वुड नॉट बी होम फॉर जस्ट लाइक 1 day or 2 day, बट ऐसा नहीं हुआ. आई वॉज नॉट एट होम फॉर हाफ ऑफ माई दिवाली ब्रेक. सो वो सारा टाइम तो मेरा वेस्ट हो गया. But today, I really need to gear up and be really productive. And now that I've said it to my camera that I'm going to be really productive, I think we are going to be really productive. And by this video, I'm sure you'll feel really motivated. I'm sure you'll have a lot of tips about how you can also prepare for your board exams without feeling stressed. मैं भी बहुत stressed लग रही होंगी, but I'll give you all tips on how to not be stressed. Anyways, now without wasting any more time, let's get right into the video. And do subscribe to my channel if you haven't already, and follow me on Instagram. This is my ID. I upload exclusive content on Instagram, and even when I'm not active on YouTube, I'm active on Instagram. So let us start. Before I start studying, I want to make a list of all the chapters which right now I don't know that well. And I already have the syllabus written somewhere. And see, I have checked off the chapters because I have done them. Like, I've done them in class, I have done them at home ek baar. But that does not mean that I'm confident in those chapters from the exam point of view. So, we're going to make a list of all of those chapters ताकि सबसे पहले हमें ये समझ आ जाए कि हम कितने पानी में हैं. तो सबसे पहले ये करते हैं. एंड आई रिकमेंड तुम लोग भी प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ने से पहले एटलीस्ट ये काम तो कर लो अपना. सो yeah, now I'll do that. So my syllabus is right over here, and instead of writing down the chapters which नहीं आते हैं digitally, I will write it on a piece of paper and stick it right there ताकि it's in front of my eyes at all times because I definitely need to be humbled. So basically मैंने जो recently question practice करे हैं उसके basis पे मेरे को ये समझ आ गया था मुझे कौन से chapter आते हैं and कौन से chapter नहीं आते हैं. And that is how I was writing down the chapters which I need to revise once again. It is very important to have this list so that you know what you need to focus on ताकि तुम easy chapters पे या जो तुम्हें already आता है उसमें अपना time waste ना करो बार बार उसे करके. So I have written down all the chapters which I need to complete. एंड मैथ्स के लिए मैंने ये भी लिखा है कि मुझे कौन सी बुक से इनको रिवाइज करना है बेस्ड ऑन हाउ आई अटेम्प्टेड माई सैम्पल पेपर्स. सो बेसिकली लाइक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने मैथ्स के काफी सारे सैम्पल पेपर्स लगाए थे. अभी तक मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं किया है, सिर्फ मैथ्स के लिए किया है. एंड उसको करने के बाद जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी उसके बेसिस पे मुझे ये समझ आ गया कि व्हाट एल्स आई नीड टू रिवाइज इन मैथ्स. सो उसके बेसिस पे आई मेड दिस. फॉर साइंस तो मुझे पता ही है मुझे क्या नहीं आता साइंस में. फिलहाल एज यू कैन सी मैंने बायो का ज्यादा कुछ लिखा नहीं है. इट्स जस्ट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दैट इज. एंड बायो में एक चैप्टर जो मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है. बट या आई थिंक आई मैनेज टू डू दैट विद माई स्कूल ओनली. बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई नीड टू डू अच्छे से फिलहाल. एंड ऑल्सो SST में आई सेड आई हेट SST, मुझे कुछ नहीं आता है. बट लाइक ये जो मैंने 4 चैप्टर लिखे हैं या I did them, but अब मैं पूरा का पूरा भूल चुकी हूँ for some reason. I don't even know why because I do them अच्छे से, but I still don't remember them like at all. Like exam point of view से I know हिंदी में chapters को like I can explain them to someone. मैं किसी को पढ़ा सकती हूँ chapters, but मुझे वाला portion नहीं आता है जो memorize करने वाला है. And मुझे आंसर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है फिलहाल ये चैप्टर्स. सो वी गोइंग टू स्टिक दिस पेपर राइट ओवर देयर ताकि मेरी आंखों के सामने रहे एंड मेरे को पता चलता रहे कि हाँ आशिका तुम्हें फिलहाल कुछ नहीं आता है. सो एनीवेज थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो गया. नाउ आई राइट डाउन माई टू डू लिस्ट एंड वी विल स्टार्ट स्टडीइंग. सो आई हैव रिटन माई टू डू लिस्ट एंड आई नो इट लुक्स रियली हेक्टिक राइट नाउ, बट अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 10:35. So we have time. I think we'll be able to complete it. Let's try to be as efficient as we can. So फटाफट मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया which was आलू के पराठे and then मैंने अलग सर का लेक्चर खोल लिया to complete this topic of heredity.
एंड लेक्चर वैसे 2 घंटे का था, बट एनसीईआरटी में चैप्टर काफ़ी छोटा था, बट अलग सर ने काफ़ी डिटेल में करा दिया था एंड कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं थे, बट वो भी इस लेक्चर में कवर हो गए थे बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स, टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी वाले टॉपिक, क्योंकि जो रैशनलाइज सिलेबस है उसमें काफ़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग है कि समझ ना आए इजिली, एंड आई ऑल्सो मेड माई नोट्स वाइल डूइंग इट। ऑल्सो गाइज दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग दिस चैप्टर, एंड अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी इतने पास हो एंड तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड अगर तुम कोई चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हो, देन मेक श्योर तुम लेक्चर देखो और नोट्स तो जरूर बनाना, एंड ओनली आफ्टर दैट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो गाइज आई recommend first pause the lecture then read the NCERT. It's always more efficient to do that, क्योंकि एनसीईआरटी में जनरली लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, एंड अगर तुम डायरेक्टली एनसीईआरटी रीड करने बैठ जाओगे तो तुम्हें शायद समझ भी ना आए, एंड फिर तुम डीमोटिवेट हो जाओ और तुम पढ़ो भी ना। सो या दैट इज वाई वॉच द लेक्चर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट डू एवरीथिंग एल्स। एंड अभी बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम था तो मेरा माइंड भी बिल्कुल फ्रेश था, सो आई वॉज एबल टू फोकस अच्छे से ऑन दिस टॉपिक। सो नाउ आई हैव वॉच द लेक्चर एंड अब मुझे एनसीईआरटी रीड करनी है। आई सॉ इट्स नॉट दैट लॉन्ग विच इज़ रियली रियली गुड, सो लेट अस रीड इट क्विकली। एंड एनसीईआरटी प्रॉपरली रीड करने का मतलब है, आई विल टेल यू व्हाइल आई रीड इट। अब हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं एंड मेक श्योर यू हैव अ हाइलाइटर विद यू, अ स्टिकी नोट एंड अ पेन व्हेन यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड वन सब टॉपिक, देन वी नीड टू रिवाइज दैट सब टॉपिक इन आवर हेड सो दैट हमारा वो एक्टिव रिकॉल इंस्टेंटली हो जाए। एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमें साइड बाय साइड करते हुए करना है, सारी पिक्चर्स के नीचे वाला कंटेंट पढ़ना है, सारी एक्टिविटीज को पढ़ना है, एंड अगर कोई क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड दैट आउट योर सेल्फ, डू दैट व्हाइल यू रीडिंग द एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे एग्जाम में एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एंड वो मेरा गलत हो गया था। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि तुम वो चीज़ भी कर लो। एंड स्टिकी नोट इसलिए बिकॉज इफ यू नीड टू मेक लिटिल नोट्स और मेक लिटिल फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स टू रिवाइज द सब टॉपिक्स, यू कैन डू दैट। वैसे इस चैप्टर के लिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ी यूज करने की, तो मैंने नहीं किया, but you can use it. Now I have checked both of these topics of my to list. हमने बस इसकी NCERT के questions I have done, but I feel like there are very little questions in the NCERT क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 questions है हमारे पास, and यहाँ पे भी सिर्फ 4 questions है, like there are not a lot of questions, so I'll practice questions later on like for this chapter. नेक्स्ट वी नीड टू डू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि मैंने अभी तक इसके क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करे हैं, सो आई विल बी डूइंग दैट। आई रिवॉर्डेड माई सेल्फ विद अ लिटिल डार्क फैंटेसी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, एंड उसके बाद मैंने नेक्स्ट चीज़ पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने थे बिकॉज आई हैव नॉट डन दैट येट। मैंने कल रात को ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया था अलग सर का लेक्चर देख के, एंड फिर आई थॉट कि आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट इज वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिवाइजिंग योर टॉपिक्स बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, एंड तुम रिवाइज जब करते हो जस्ट पिक अप एनी टॉपिक दैट यू वांट टू रिवाइज एंड pick up any questions of that topic and practice those questions, and जिस हिसाब से तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हुए हैं और डिफिकल्ट हुए हैं, तुम्हें ये समझ आ जाएगा तुम्हें कौन सा टॉपिक नहीं आता है उतना अच्छे से एंड कौन सा टॉपिक में तुम अच्छे हो चुके हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन रिवाइज दोस पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे करेक्ट हो गए उनको आई वाज लाइक ओके सो आई नो दीज टॉपिक्स, एंड जो मेरे इनकरेक्ट हुए उनको मैंने एक बार बुक खोल के उनके सोल्यूशन पढ़े, एनसीईआरटी में जो उनके बारे में लिखा था वो पढ़ा, एंड आई ऑल्सो रोट देम डाउन इन माई रजिस्टर। आफ्टर दैट लंच का टाइम हो गया था एंड मेरे पेरेंट्स गॉट छोले भटूरे फ्रॉम आउटसाइड, सो वी एट दैट एंड देन आई स्टार्टेड माई नेक्स्ट स्टडी सेशन। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं साइड बाय साइड मूवी देख रही हूँ, वेल आई एम वॉचिंग हैरी पॉटर चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, एंड मेरे को पूरी मूवी याद है तो मतलब मैं देखती भी नहीं हूँ, इट्स जस्ट प्लेइंग इन द बैकग्राउंड बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स मी फोकस एंड माई ब्रेन थिंक्स दैट आई एम नॉट स्टडिंग इवन व्हेन आई एम। सो आई वाज प्रैक्टिसिंग एपी के क्वेश्चंस, एंड लाइक आर डी शर्मा में एपी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मेरी मम्मी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दिए थे एंड मैंने वही क्वेश्चंस फटाफट प्रैक्टिस कर लिए, एंड देन आई चेक्ड इट ऑफ माय टू डू लिस्ट एज वेल। तो आई जस्ट टुक अ नैप लाइक 20 मिनट्स का, एंड नाउ आई एम अप, बट मेरे को एसएसटी पढ़ना है जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। So let us make ourselves coffee पहले। I always drink Nescafe की कॉफ़ी, तो सबसे पहले हमने इसमें मिल्क डाला एंड मैं मेजर करना भूल ही गई थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने ज़्यादा डाला है कम डाला है। उसके बाद आई एडेड माई कॉफ़ी पाउडर एंड सम शुगर एंड दिस इज़ हाउ इट लुक। उसके बाद आई एड माई सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच इज़ ड्रिंकिंग चॉकलेट गाइस,
एंड बस हो गया, फिर इसको फटाफट ब्लेंड कर दिया। एंड ब्लेंड करते वक्त मैं थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि दिस इज अ न्यू ब्लेंडर एंड वो अचानक से बहुत तेज चल गया था। बट फिर मैंने फटाफट ही 3-4 सेकंड में उसे बंद कर दिया। एंड हियर इज हर कॉफी एंड काफी प्यारा सा कलर आया है इसका एंड इट वाज रियली रियली यमी, सो आई poured it in my mug and it was literally the perfect amount. So I was glad बिना देखे मैंने आराम से इसे मेजर भी कर लिया। एंड कॉफी पीने के बाद आई स्टार्टेड माय नेक्स्ट स्टडी सेशन। ऐसे बीच बीच में थोड़े बहुत ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे देन यू विल जस्ट बर्न आउट एंड यू विल गिव अप, बिकॉज आई हैव डन दैट मेनी टाइम्स। सो बेसिकली अब मैं एसएसटी पढ़ रही थी विच आई हेट सो मच एंड आई वाज डूइंग प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर। अगर तुम 10th में हो तुम्हें पता होगा कि कितना ज्यादा बोरिंग चैप्टर है। एंड प्लीज गाइज मुझे कमेंट्स में बताओ एसएसटी कैसे पढ़ूं मैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू इट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सिलेबस एंड आई फील लाइक आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम ऑन इट, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मैं पढ़ रही हूँ मुझे याद हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सो प्लीज कोई मुझे कमेंट्स बता दो कैसे पढूं मैं एसएसटी। बट फिलहाल तो मैं लेक्चर देख रही थी, एनसीईआरटी रीड कर रही थी, नोट्स बना रही थी, आई वाज एक्टिव रिकॉलिंग, रीडिंग इट आउट लाउड एज वेल। एंड आई थिंक ये चैप्टर जितना मैंने पढ़ा था आज मुझे थोड़ा बहुत तो याद हुआ ही होगा, कुछ तो रिटेन हुआ ही होगा। आई विल रिवाइज इट वंस अगेन लाइक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। सो येस, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू इट। बट उसके बाद मैं बोर हो गई थी घर पे पढ़ पढ़ के, तो आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर सेटिंग and your environment because that might make you feel more motivated. And I was also with my friend, so she was completing her project and I was doing maths because I'm able to do maths only at a public place. या सो आई वाज विद अनन्या एंड उसके बाद प्रखर भी आ गया था एंड ये लोग बहुत तेज तेज बातें कर रहे थे। आई मीन अनन्या वांटेड टू टेल अस सम स्टफ, इसलिए आई केम टू द लाइब्रेरी मेनली। बट आई वाज आल्सो डूइंग मेरा मैथ्स का काम, सो वो भी हो रहा था साइड बाय साइड। सबसे पहले मैं एपी कर रही थी बट उसके बाद आई स्विच टू डूइंग ट्रिग्नोमेट्री लाइक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एंड कुछ क्वेश्चंस मुझसे हो नहीं रहे थे तो उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गई एंड आई टोर अ पेज। After that little crash out, I was doing maths only and जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए मैंने सर्कल कर लिए एंड घर जाके मैंने अपनी मम्मा से समझ भी लिए थे वो क्वेश्चंस के कैसे करना है। So yeah, I was doing that. And honestly, guys, our society library is a really great place to study if you have noise cancelling headphones. क्योंकि sometimes little kids come there and वो कूदते रहते हैं couch पे और बहुत तेज तेज चिल्लाते रहते हैं. But yeah, उसके बाद I had my dinner and everything and I went on a walk. My society was looking really pretty today. So I've had my dinner and I also went on a walk and I think I had quite a productive day today. And that is pretty much it for today's video. I hope that you all enjoyed it. And if you did, make sure to like it and subscribe to my channel if you haven't already. And also follow me on Instagram. I'll put up my ID right over there. And also guys, abhi filhal it's 9:40 and आज हमने काफी कुछ किया but we still have a few things left to complete to do list में. So I'll be doing all of that now, but I'm too lazy to film, so I won't be doing that. So yeah, this is where this video ends. Let me know in the comments what you would like to see next, because I'm running out of video ideas. And bye bye.